آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ہماری زندگی کا خالی پن اور آزمائشیں۔ ہماری زندگی کا جو خالی پن ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے اور دل ہی دل میں وسوسے پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا خالی پن۔ اس خالی پن میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں آج بور ہو رہی ہوں یا میں آج بور ہو رہا ہوں۔ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ چلو آج فلاں بہن کے ساتھ یا فلاں بھائی کے ساتھ جاتے ہیں، باہر شورما کھاتے ہیں، شورما ٹائم پہ وقت گزار آتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے گول گپے کا پروگرام بنتا ہے، ہم گول گپے کھاتے ہیں۔ خالی پن، اپنی زندگی کو ہم بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم خالی ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ بھرنے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچ آتی ہے کہ جیسے آج سنڈے ہے، آج اتوار ہے، آج بات ہو سکتی ہے میری بھابھی سے، میرے بھائی سے، میری خالہ سے، میری پھپھو سے کہ یہ فلاں بات غلط ہے یا اچھی ہے، اس کو لمبا کرنے کے لیے اس سے جا کر بات چیت کرتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا بڑھ جائے۔ یہ زندگی کا خالی پن ہے، خالی۔ اور یہی جو زندگیوں میں خالی پن ہے، یہ ہماری آزمائش کا موقع بن جاتے ہیں۔ ہم آزمائشوں میں پڑتے ہیں، ہم برے خیالات کو سوچتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، وقت خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جو یسوع نے ہمیں وقت عطا کیا ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں اور ہم لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہماری زندگیوں میں جو خالی ہے، جو یہ گیپ ہے، یہ گیپ ختم کرنا ہے میرے عزیزوں۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں گیپ اس طرح ختم ہوتے ہیں کہ ہم وہی وقت جو ہم برے خیالات میں پڑتے ہیں، بری باتوں میں پڑتے ہیں، برے راستوں پہ جاتے ہیں، ہم اس کو ترک کر کے ہم اپنے یسوع کو، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں وقت دیا، ہم اس کو وقت دیں، ہم اس کے ساتھ ہوں۔ ہم اس کے ساتھ تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں میں سے برے خیالات کو نکالتے ہیں، برے وقتوں کو نکالتے ہیں، بری جگہ کو نکالتے ہیں، برے انسانوں کو نکالتے ہیں، تب ہی ہم یسوع کو اپنے ساتھ پا سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم برے خیالات سوچیں، ہم چغل خوری کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ کو اپنے ساتھ رکھیں، ابلیس کو اپنی زندگی میں رکھیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یسوع ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں ہو، ہمارے خاندانوں میں ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اپنے خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ آمین۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیال ہمارے یسوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ پوری یونیورس کا خالق اور مالک ہے۔ آمین۔ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ آمین۔ اس کی کوئی آزمائش نہیں کر سکتا، لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ابلیس
अगर यीशु के पास आकर यीशु को आजमा सकता है तो आप और मैं किस खेत की मूली है? हमें तो वो मिनटों सेकंडों में धोखा देता है, एक मिनट में वो हमें धोखा दे देता है। वो इस वक्त इस कलाम में जो हमने पढ़ा उसमें यीशु को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मगर यीशु को कोई धोखा नहीं दे सकता। वो यीशु को कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि रोटी पत्थर रोटी बन जाए। वो कर सकता था, उसी टाइम कर सकता था, मगर उसने इब्लीस को उसी टाइम डांटा। उसने वो बातें बताई जो खुदावंद के कलाम में लिखी हैं कि लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि वो बातें जो खुदावंद के मुंह से निकलती हैं, खुदावंद का कलाम बताता है, वो बातों से जीता रहेगा। खुदावंद यीशु कहते हैं कि तू इब्लीस की बात मानेगा तो तू क्या होगा? मरा। और यीशु की बात मानेगा तो यीशु क्या करता है? इंसान को हमेशा की जिंदगी देता है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता। इब्लीस की बातें पल पल की हैं, खत्म हो जाने वाली हैं, मगर मेरा यीशु ये अब्दुल जिंदा है, उसकी ना बातें टल सकती हैं ना खत्म हो सकती हैं। उसके मुंह की बातें हैं, ये उसके मुंह की बातें ना टलेगी ना खत्म होगी। वो हर वक्त हमारे साथ जिंदगी का खुदावंद है। उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें मौत से छुड़ाया। इसलिए इब्लीस की बातें जो हैं वो झूठी हैं और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सच्ची हैं। सच्चाई को हम अपनी जिंदगी में लें, हम झूठ के पीछे ना लगे। और ये जब हम खाली होते हैं, हम बातों को सोचते हैं, हम झूठ प्रेम की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, तो ये वक्त इब्लीस को बहुत पसंद है। और जब हम सोच रहे होते हैं ये बातें तो इब्लीस उसी वक्त हमारी जिंदगियों में अटैक करता है। हर रोज आप देखते होंगे कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुचारी जरूर है, कहीं ना कहीं इब्लीस आपको तंग करता है, कहीं ना कहीं वो आपकी जिंदगी में अटैक्स करता है। ये तब होता है जब हम उसको वक्त देते हैं। जिसने यीशु को नहीं छोड़ा वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे पीछे लगा रहता है, वो हर वक्त हर घड़ी हमारे पीछे लगा रहता है कि कहां पर ये बंदा गलती करे और मैं इस पर अटैक करूं, मैं इसको आजमाइश में डालूं, मुश्किल में डालूं, परेशानी में डालूं। ये तब होता है जब हम इब्लीस को अपनी जिंदगियों में मौके देते हैं। यही वो वक्त था जब अम्मा हवा और बाप आदम, उनकी जिंदगियों में भी इसने ऐसी ही वारदात की, सेम। उनको कहा कि तू इस दरख्त का फल खाएगा तो तू क्या होगा? किसकी मानित हो जाएगा? ये खुदा की मानित। तो क्या वो मेरे अजीजों खुदा की मानित नहीं थे? वो तो खुदा की मानित थे, क्योंकि खुदावंद ने कहा आओ हम इंसान बनाएं और अपनी शक्ल पे बनाएं। यहाँ पर क्या हुआ? इब्लीस ने आदम और हवा को धोखा दे दिया और वो क्या हुए? धोखे में फंस गए। 1 मिनट लगता है इब्लीस अपनी चालाकी मक्कारी से इंसान को अपने धोखे में फंसा देता है।
उन्होंने ये ना सोचा कि खुदावंद ने हमें अपनी छवि पे बनाया, अपनी मानित बनाया, अपना सब कुछ हम में डाल दिया। ये सब कुछ वो भूल गए और उन्होंने इब्लीस की चालाकी मक्कारी पर गौर किया और उसकी मानी और वो फल खाया। ये धोखा है। इब्लीस मेरे अजीजों बहुत बड़ा धोखा है। वही वारदात वो फिर यीशु के साथ करता है और यीशु को आके कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है। वो जानता है, वो सब जानता है, वो खुदा का बेटा है और वो था, वो है और वो रहेगा। आमीन। लेकिन उसने फिर भी उनको धोखे में फंसाया। वही वारदात वो यीशु के साथ करने आ गया और वो यीशु को धोखा दे रहा है। यीशु को कोई धोखा दे सकता है? वो सब जानता है। वो जिसने कुल कायनात बनाई, वो कोना कोना चप्पा चप्पा सब जानता है। हर इंसान को जानता है, हर शजर को जानता है, हर अच्छाई को जानता है, हर बुराई को जानता है। हमें इब्लीस के धोखे में नहीं फंसना चाहिए, गौर करना चाहिए। अपनी आंखों को खुला रखना है। हमने एक दूसरे को देखना है, जांचना है, खुला रखना है अपनी आंखों को, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। हम इब्लीस की बातों में नहीं आए, हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। ये कुव्वत मांगनी चाहिए, ये ताकत मांगनी चाहिए, ना कि अपने आप को खाली करके दुनिया की बातों में आना चाहिए, दुनिया की सोचों में रहना चाहिए, दुनिया की फिक्रों में रहना चाहिए। ये दुनिया फानी है, खाली है। सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे यीशु का नाम ही ऊंचा है। वो ही सब कुछ है। वो हर काम की कुदरत ताकत रखता है। वो हर काम कर सकता है हमारी जिंदगियों में। हर चालाकी मक्कारी को हमारी जिंदगियों में से वो खत्म कर सकता है। और वो आया, वो इसीलिए आया। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि जा, सारी चालाकी मक्कारी पर गालिब आ जा। और उसने अपना सब कुछ इंसान को दे दिया, यहां तक कि उसने अपना इकलौता बेटा भी इंसान को दे दिया। आमीन। उसने हमारे लिए अपना फिदिया दे दिया। इतने जुल्म सहे, इतने सितम सहे इंसान की खातिर, सब कुछ किया उसने। लेकिन हम इंसान होते हुए फिर भी वफादार नहीं, फिर भी अपने खुदा के साथ सिंसियर नहीं। मैं बार बार जब भी मैं कलाम खुदावंद का पेश करती, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, इतना सा वक्त दें, एक कदम उठाएं। आप कोशिश करें एक कदम उठाने की, कोशिश करें, दिल में ये बात बांध लें, ज़हन में ये बात बांध लें कि मैंने अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना है। तो आप जब एक कदम उठाएंगे तो उसके 100 कदम आपके साथ होंगे। हालेलुया। जब आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो आपका सहारा भी बनेगा, वो आपकी ताकत भी बन जाएगा, वो आपका जोर भी बन जाएगा। आप कदम तो उठाएं। आप एक दफा खुदा का कलाम खोलकर खुदावंद की हजूरी में बैठकर खुदावंद से कलाम करें। कलाम नहीं, मेरे साथ लोग, मैं बार बार ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं, मैं बातें सुनती हूँ लोगों की, ये आम रोजमर्रा की बातें होती हैं कि खुदा ते साडे नाल गल नहीं करता, असीं ते उहदे नाल इन्ना जुड़े हैं, इन्नियां दुआवां करने आ, खुदा साडे नाल गल नहीं करता। खुदा बात करता है मेरे अजीजों। खुदावंद ने ये जो जिंदा कलाम है ये आपको दे दिया है, ये उसके मुंह की बातें हैं। इसको पढ़ें, समझें, अपनी जिंदगियों में लें। जब यीशु का कलाम आप अपनी जिंदगियों में लेंगे तो वो आपकी जिंदगियों में से दुख, तकलीफ, परेशानियां, आजमाइशों को निकाल देगा। ये उसका वादा है। वो अपने वादे से मुकरता नहीं, वो अपने वादे से ये नहीं बात करता कि वो वादा करके भूल
या खत्म कर दे। ना वो भूलता है ना वो खत्म करता है, वो अपने वादे के मुताबिक चलता है। उसका हमारे साथ जो बात करना है, कलाम करना है, एक बात की तरफ हम तवज्जो देंगे तो वो 100 बातें एक कलाम एक आयत के साथ उसने रखी हुई हैं। वो 100 बातों को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आप एक आयत पढ़ेंगे वो 100 बातों को पूरा कर देगा। आप अपने घर में खुदावंद का कलाम खोलें, खानदानी दुआ करें, खानदान के साथ बैठ के दुआ करें, तो वो आपकी जिंदगियों में बरकतों को भर देगा, खुशियों को भर देगा, हर चीज अता करेगा आपको। आप आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। होता है जब खुदावंद का कलाम आप शुरू करते हैं तो बड़ी बातें ऐसी हमारी जिंदगियों में होती हैं, तो हम क्या बात करते हैं, फोन में दुआ करना शुरू होइया या होया ते ऐने नाल मुश्किल परेशानियां शुरू क्यों होता है? होगा, जरूर होगा। याद रखें कि जब भी आप खुदावंद की हुजूरी में बैठेंगे ये सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि इब्लीस आपके पीछे है, और जब हम करते जाएंगे तो वो क्या होगा? थक जाएगा, हार जाएगा, और हमारी जिंदगियां आसान हो जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हमारी जिंदगियों में हर खुशी होगी, खुदावंद की दी हुई हर नेमत होगी, तब होगी जब हम खुदावंद यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे। जुड़ने की बात है, उससे बात करने की बात है, उसको बरकत देने की बात है। हो सकता है कोई काम मुश्किल नहीं, ये सोच के आप करें कि हम यीशु की मानित हैं। जब हम यीशु की मानित हैं तो हमारे लिए कोई काम मुश्किल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसलिए यही सोचें कि हम यीशु की मानित हैं। बाप आदम और अम्मा हवा के साथ जो हुआ, बागे अदम में जो वाकया हुआ, वो क्या इब्लीस एक बार आया था उनके पास, एक बार आके बस बात करके चला गया कि बस से फल खा लो? नहीं, बार बार आया, और उसने तब तक अपनी कोशिश जारी रखी जब तक उसका वो काम पूरा नहीं हुआ। तो जब काम पूरा हुआ तो वो उनके दरमियान में से क्या हुआ? चला गया। इसी तरह इब्लीस हमारी जिंदगियों में भी बार बार आता है, और वो आएगा, लेकिन मात किसने देनी है इब्लीस को? आपने। हराना किसने इब्लीस को? आपने। वो मैंने नहीं हराना, वो किसी पास्टर ने नहीं हराना उसको। आपकी कोशिश के साथ, आपकी हिम्मत के साथ वो काम होगा कि इब्लीस क्या होगा? हर जाएगा। जिस तरह खोपड़ी के मकाम पर, कलवरी के मकाम पर यीशु ने इब्लीस की खोपड़ी को कुचल डाला, खोपड़ी के मुकाम पर इब्लीस की खोपड़ी को कुचला, इसलिए उसका नाम खोपड़ी रखा गया। उसी तरह हमने, अगर यीशु गालिब आया तो यीशु ने हमें भी वही कुव्वत, वही ताकत दी कि तुम भी जाओ और इब्लीस की खोपड़ी को कुचल डालो। हम इब्लीस की खोपड़ी को, आप इब्लीस की खोपड़ी को कुचल सकते हैं, मार सकते हैं, उसको अपनी जिंदगी में से निकाल सकते हैं। यीशु ने सिर्फ उससे यही कहा कि ए इब्लीस दूर हो, और कोई बात नहीं की। यीशु का नाम लें, यीशु को अपनी जिंदगी में रखें, तो जितने लश्कर हैं वो सब कुचले जाएंगे, क्योंकि हम में वो ताकत है, वो कुव्वत है। हमें चाहिए कि फैमिली प्रे करे। हम क्या करते हैं? खालीपन में मर्दों में अक्सर ये बात है तो चलो आज शराब पिए। अपनी वो जिंदगी का जो वो थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, वो कहते हैं चलो शराब पी के तो थोड़ा वक्त गुजार लेने, अच्छा वक्त गुजर जाएगा। वो अच्छा वक्त गुजर सकता है। जब हम शराब पिएंगे तो क्या करेंगे? बदचलनी पैदा होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, डांस, नाच, रंग, और वो हमने क्या किया? वो खालीपन का हिस्सा हमने इब्लीस को दे दिया।
ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ बस गम भुलाने गम भूलते नहीं मेरे अजीजों जब शराब का नशा उतरता है वो गम बढ़ जाते हैं शराब पीना ताश खेलना नशा करना और जब ये सारे काम हम खुशी खुशी करते हैं तो उसके बाद गम बढ़ जाते हैं ये गलत है ये आजमाइशों में पड़ते हैं ये जब लोग करते हैं वो आजमाइशों में पड़ जाते हैं उनकी आजमाइशें कम नहीं होती उनकी आजमाइशें बढ़ती हैं उनके गम बढ़ते हैं गम तब खत्म होते हैं जब हम अपने यीशु को अपनी जिंदगी में रखते हैं ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए नहीं गैप नहीं आना चाहिए हमारी जिंदगी में जहां गैप आया वहां इब्लीस आया जब हमारी सरफराजी का वक्त होता है वक्त तो हर वक्त ही अच्छा होता है हर वक्त ही सरफराजी का वक्त है जब आप यीशु को याद करोगे जब आप यीशु को पुकारोगे वो तो उसी वक्त आता है वो सरफराजी है लेकिन फिर भी जब हम दुआ कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं फिर हमारी बातें शुरू दूसरी वो उसके बाद हमारी सरफराजी का वक्त शुरू हो जाता है लेकिन हम अपनी जिंदगी में दूसरी बातों को गलत बातों को लेते हैं गलत बातों को नहीं लेते सरफराजी का वक्त खत्म होता है जब आप दुआ करते हैं आपकी सरफराजी का वक्त शुरू होता है और हमने उस वक्त को अपनी जिंदगी में से खोना नहीं ये वक्त बहुत मुश्किल आता है इब्लीस से भाग के इब्लीस को डरा के इब्लीस को अपनी जिंदगी में से जबरदस्ती निकाल के ये वक्त आता है इस वक्त को अपने हाथों से जाने ना दें इस वक्त को थामे क्योंकि यही वक्त जो है आपकी जिंदगी में आपके घरानों खानदानों में बरकत का बाइस होगा बरकत मिलेगी अगर कोई आपके घराने खानदान में गलत बात है तो वो भी यीशु निकालेगा वो चाहे करे ना करे जिसके साथ बुरा वक्त चल रहा है आप माँ बहनें भाई एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो वो जिसके लिए आप दुआ करेंगे वो सरफराजी पाएगा वो बरकत पाएगा हम इस वक्त को अपने हाथों से ना जाने दें इस वक्त को अपने वक्त में से ना जाने दें वक्त को पकड़ के रखें वक्त गुजर जाता है वक्त रुकता नहीं इसलिए खुदावंद का कलाम आप सबकी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है हम यहाँ पर बैठे हैं खुदावंद का कलाम हासिल करने के लिए इस जगह हम बैठे हैं दुआ करने के लिए इस जगह हम बैठे हैं प्रस्तिश करने के लिए अपने यीशु को पुकारा हमने वो यहाँ पर मौजूद है वो आप सबके सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है उसको वक्त दे ये नहीं कि आप चर्च में बैठे हैं ध्यान आपका दुनियादारी में है ध्यान आपका घर है ध्यान आपका आपके खानदानों में है रिश्तेदारों में है यहाँ कलाम हो रहा है सोचे कहीं और है मैं उसको जाके अभी पूछूंगी दुआ के बाद मैं फलां के घर जाऊंगी उससे ये बात की उससे तो मैं जाके बात करूंगी उसको तो मैं जाके पूछूं नहीं कलाम हो रहा है तो कलाम की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कलाम की तरफ तवज्जो होगी तो आपको समझ लगेगी आप समझेंगे जिंदगी को गुजारना कैसे है अपने खानदानों में रवैयों को रखना कैसे है एक दूसरे के साथ कैसे गुजरना है ये सब तब होगा जब हम ध्यान देंगे तवज्जो देंगे खुदावंद के कलाम पर ताकि हम आजमाइश में ना पड़े ताकि हमारी जिंदगियां खाली ना हो हम भरे रहें खुदा के रूह से भरे रहें खुदावंद की कुदरत से भरे रहें उसके जलाल से भरे रहें मुर्दा जिंदगियां ना गुजारे हम क्योंकि हम क्या हैं खुदावंद ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं और हम क्या हैं
उसने कहा तुम भी दुनिया के नूर हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो वो खुद है उसने हमें भी इस काबिल बना दिया है। वो नूर है तो आप लोग भी नूर हैं। वो बरकत है, आप लोग भी बरकत हैं। आप भी बरकत दे सकते हैं तब जब आप अच्छे होंगे, आपकी जिंदगियां अच्छी होंगी, आप खाली नहीं होंगे, आप पाक रूह से भरे होंगे। सब कुछ कर सकते हैं आप, हर काम हर बात कर सकते हैं। जो मेरा खुदावन और आपका खुदावन कर सकता है वो आप सब भी कर सकते हैं। करने की जरूरत है। खुदावन यीशु मसीह इब्लीस की हर कुव्वत पे गालिब आया तो हम भी आ सकते हैं। उसने हमें भी ये कुव्वत दी है, ये ताकत दी है कि हम भी गालिब आए, हम हलाक ना हो, हम हमेशा की जिंदगी पाए, अपनी रूहानी जिंदगी बरकरार रखें। दुनियावी जिंदगी मैं ये नहीं कहती कि आप दुनियावी जिंदगी ना गुजारें, दुनियावी जिंदगी बहुत जरूरी है, उसमें हर काम है, मगर अच्छे तरीके से कोशिश करें। किसी का दिल ना दुखाए, बरकत दे, परेशान ना करे, बरकत दे, ताकि आप भी परेशानी ना उठाएं, आजमाइश में ना पड़े। खुदावंद का कलाम हमें हर बात के लिए समझाता है, हर बात हमारी जिंदगी में वो लेके आना चाहता है, मगर लेने की जरूरत है, उसको अपने अंदर लेने की जरूरत है। हमारी जिंदगियां रूहानी होनी चाहिए। कुछ तो फर्क आए, थोड़ा सा तो फर्क आए। मैं वसीम भाई, पास्टर वसीम की जिंदगी के बारे में मैं अक्सर सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ, क्योंकि इनकी जिंदगी हमारे साथ जुड़ी हुई है और हकीकत झूठ नहीं, जो भी है जिस तरह भी है सामने, पीछे कुछ नहीं। शुरू तो किया उन्होंने, कोशिश तो की उन्होंने अपने साथ आप सबको भी जोड़ा। आपका शुक्रिया कि आप जुड़े हुए हैं, मगर कोशिश करने से सब काम हो सकते हैं। बड़े से बड़ा जो कहते हैं ना कि एक काम बहुत मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं। गैर माबूदों में से निकल के जिंदा खुदावंद में आना कोई काम कितना मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है। गैर माबूद और फिर यीशु में हो जाना, यीशु में आ जाना। खुद तो मजबूत है, उन्होंने हमें भी मजबूती दिला दी यीशु से। हालेलुया। हीला करोगे तो वसीला बनेगा खुदा। ये झूठ नहीं मेरे अजीजों, जो मैं बात कर रही हूँ मैं हकीकत कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ, मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, मैं अकेली बैठी हूँ। कैसी जिंदगी, और यीशु ने बदल दिया, वो तब्दील कर देने वाला, हालात और वाकयात को वो तब्दील कर देता है जब हम क्या करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं। हमारा एक कदम, पूरी जिंदगी उसने हमें दे दी, एक कदम ही हम बढ़ा सकते अपने खुदावंद के लिए। अगर हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते तो हमारी जिंदगी बेफायदा है, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आज का कलाम मैं चाहती हूं कि आप एक कदम बढ़ाएं, आजमा कर तो देखो कि वो कितना भला है। हालेलुया। आप आजमाएं, आप बात करें, पुकारें, वो आपकी जिंदगियों में आएगा और आपकी मुसीबतें, आपकी आजमाइशें, परेशानियां, दुख, तकलीफ सब कुछ निकाल देगा। कोशिश करें। हमने वो बात है, वो गीत है कि असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे। हालेलुया। हम हार नहीं सकते और हमें हार माननी भी नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ है वो जंगों को जीतता है। आमीन। वो जंगों को जीतता है, ना वो हारने वालों में से है, ना हम हारने वालों में से हैं। हालेलुया।
आए मेरे अजीजों, हम अपनी तन्हाइयों को यीशु को दे दें। अपनी तन्हाइयों में हम अपने यीशु को ले लें, अपनी मुसीबतों में हम अपने यीशु को ले लें, अपने गुस्से में हम अपने यीशु को ले लें, हम अपनी परेशानियों में अपने यीशु को ले लें और हम आजमाइशों में से निकल जाएं। हालेलुया। और हम क्या करें? इब्लीस को शर्मिंदा करें। फिर खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब ये सब बातें हम में होंगी तो क्या होगा? फरिश्ते आकर हमारी क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। देखें मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात। खुदावंद ने कहा कि फरिश्ते तेरी खिदमत करेंगे। कौन कौन चाहता है कि फरिश्ते उनकी खिदमत करें? सब चाहते हैं ना? वो कर सकता है। फिर हमें कोई आंच, कोई तकलीफ, कोई दुख ना होगा। हमारे इर्द गिर्द हमारा रूह पाक काम कर रहा होगा, हमारा यीशु हमारी जिंदगी में होगा, वो हमारे आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे होंगे। ये तब होगा जब हम सच्चे दिल से अपने खुदावंद की इबादत करेंगे, उसको अपनी जिंदगी में रखेंगे। ये तब होगा और हो सकता है, मेरा ईमान है, हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ होता है। मैं जो कर मांगती हूँ वो मुझे मिलता है। मैंने एक दिन बारिश को रोक दिया, मैंने भाई को बताया, ये हो सकता है। आप बारिश को कहिए ना थम जा, वो थमेगी। आप कहेंगे मौसम अच्छा हो जा, वो होगा। आप कहेंगे मेरी जिंदगी अच्छी होगी। आप कहेंगे मुझे घर मिल जाए, मिलेगा। इब्लीस आया और उसने कहा, खुदावंद यीशु को कहता है कि चल, ऊंचे पहाड़ पे ले गया। ऊंचे पहाड़ भी उसके, शान और शौकत भी उसकी, इज्जत दौलत भी उसकी, हर चीज तो उसकी, तो धोखा कैसा? हर चीज तो यीशु की, मगर वो खुद बेवकूफ है, वो दूसरों को भी बेवकूफ बनाता है। मेरी नजर में इब्लीस बेवकूफ है। उसे पता है कि यीशु कौन है, वो खुद यीशु से डरता है, लेकिन वो चालाक और मक्कार है। अपनी चालाकियां, अपनी मक्कारियां वो दिखाता है। वक्ती, ये सब काम वक्ती हैं, ये ज़हन में रखें, कुछ पल के। मगर मेरे खुदावंद की दी हुई बरकत कुछ पल की नहीं मेरे अजीजों। जब वो बरकत देता है तो वो लेता नहीं, वो देने वालों में से है, वो लेने वालों में से नहीं। जितना मर्जी फिर वो बंदा जिसको बरकत मिली हो, वो जितना मर्जी चालाकियां मकारियां करे, जो मर्जी करे, लेकिन जो बरकत उसको मिली है वो वापस नहीं लेता, वो उसके पास ही रहती है। कोशिश करें कि हम अपने आप को सही करें, हम अपने आप को अपनी जिंदगियों में ठीक करें, अपने घराने खानदानों को ठीक करें हम, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। दुआ करें, हर वक्त दुआ करें अपनी मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए, दुखों के लिए, तकलीफों के लिए। औलाद अच्छी हो, सब कुछ ठीक होगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।